अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी विजिट वीज़ा से रिलेटेड फॉर डिफरेंट नेशनलिटीज़। ये मेरे माइंड में बात कैसे आई, मुझे 2-3 दफ़ा आई थिंक फ़िलिपीन और इंडोनेशिया से कुछ मेल या फीमेल थे, उन्होंने वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट किया था। आई थिंक आई शुड टॉक इन इंग्लिश सो दैट दे कुड आल्सो अंडरस्टैंड. Couple of people from I think Indonesia and Philippines, they commented down on my couple of videos back I think 1.5 months before that how to get a job in Pakistan. So from that time I started searching about Pakistani visit visa for different nationalities, and here are some things that I could discuss with you. थोड़ी सी उर्दू में बात कर लेते हैं, फिर इसको मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता हूँ. If you people don't understand my language, don't worry, hang on. I'll explain this in English as well. So, 50 कंट्रीज़ हैं जिनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का, जो कि यहाँ पे खुली हुई भी है, आपको नज़र आ सकती है, ठीक है. तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. और मैं अब वो बताऊंगा जिनका हम काम करते हैं या जो लोग हमारे पास ज़्यादातर आ सकते हैं फॉर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या फॉर स्टडी पर्पज़ या फॉर विज़िट पर्पज़. सो 50 कंट्रीज़ ऑन अराइवल जो हैं, उसमें से जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हम जानते हैं या जो हमारे पास आ सकते हैं, उनमें हैं अज़रबैजान, बहरीन और घाना, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, साउथ कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, टर्की, यूएई. ये वो कंट्रीज़ हैं 50 कंट्रीज़ में से, ये वो कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं. टोटल 50 कंट्रीज़ हैं जिनको, जो अगर इन नेशनलिटीज़ से हैं तो उनको ऑन अराइवल पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है. सो देयर आर 50 कंट्रीज़ who are eligible to get on arrival visit visa in Pakistani passport, and some of those countries which I'll mention right now, we are familiar with them, or we deal in those countries as well. So out of those 50 countries who are eligible for on arrival visit visa in Pakistan, one is Azerbaijan, then Bahrain, and Ghana, Indonesia, Japan, Jordan, South Korea, Kuwait, Malaysia, Maldives, Nepal, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, and Turkey and UAE. So these are the countries. If you are from these countries, you are eligible to get on arrival visit visa in Pakistan, and you are most welcome. And this website link I will give in video description as well, and you can contact me. My number, contact number, my WhatsApp number is given in video description and in comments pin as well. Okay, इसके अलावा 191 कंट्रीज़ हैं आज के डेट के हिसाब से जो एलिजिबल है विजिट वीज़ा के लिए, ई वीज़ा के लिए, मतलब वो इस वेबसाइट पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. ओके, I should mention that on arrival visa there is a fees of I think around $50 for different nationalities. Some it is $25, for some it is $20, for some it is 30, 40, 50. But ideally keep this thing in mind that if you are coming on arrival visa that you will get in Pakistan, you bear this thing in mind that you should have $50 US dollars in your pocket to get that visa, and that is for 30 days. Okay, but if you want, you can take prior visa, which is e-visa, that is for at least 3 months. So if you want to stay and if you have planned more than 1 month, and that also give you some other features as well, that you could have more than single entry, 2, 3, 4, 5 multiple entries, but the prices are different then. But it's not that expensive and it's not that tricky as well. You can ask me
I could provide my consultancy service to you people as well, and you are more than welcome to Pakistan. Anyway, अब 191 कंट्रीज़ हैं वो एलिजिबल हैं ई वीज़ा के लिए. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा के लिए, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. उसमें आ जाता है जो जिनको हम चाहते हैं. अगेन भाई अज़रबैजान, बहरीन, देन बांग्लादेश ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप बांग्लादेश से यहाँ आना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर है ब्राज़ील भी आ सकता है, बुल्गारिया भी आ सकता है. बुल्गारिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो इधर पाकिस्तान की साइड पे आना चाहते हैं. ओके, चाइना है ई वीज़ा के लिए. ओके, साइप्रस है और इजिप्ट है. ये वो कंट्रीज़ है जिनको हम जानते हैं. इसके अलावा 191 कंट्रीज़ हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, ये डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक गिवन होगा वेबसाइट पे, उस पर आप चेक कर सकते हैं. ओके, फिर है घाना अफ्रीका के कंट्री जो कि मतलब हमारे से रिलेटेड ही है समझो. इंडोनेशिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कज़ाकिस्तान, कीनिया, साउथ कोरिया, कुवैत, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश के पास एक छोटा सा कंट्री वो भी है एलिजिबल ई वीज़ा के लिए. नेपाल, ओमान, फिलिपिन, also you can also apply Pakistani visa from your laptop, from your computer. Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Turkey, UAE, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Sudan, Nigeria, Iraq, Syria, Yemen, Palestine, अफ़गानिस्तान आल्सो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं. भूटान. ओके, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि जिनको मतलब जो हमारे पास आने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. अच्छा, एक और कंट्री है यूरोप का, अल्बानिया का ई वीज़ा है. यू कैन गेट नाउ. आई थिंक आई शुड टॉक इन इंग्लिश सो दैट यू पीपल कुड अंडरस्टैंड. पीपल फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम फिलिपिन, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम अल्बानिया, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, all these people, I mean all people from these countries, they are eligible to get e-visa, electronic visa, for 3 months. You can get for 6 months and you can get for more than 6 months as well, depend on your traveling plan and your travel purpose. So I'll recommend you that if you are looking for business expansion apart from your country, or if you want to get a job, or if you want to have a study plan here, because study in Pakistan is not that expensive and the degrees recognized and authenticated all over the world. So people from Bangladesh also can apply and can get the e-visa as well, and you can get these services from us as well. So why I'm making this video, because there are people, and I think I should say this openly, even in my friend zones, there are many people who have girlfriends from Indonesia, from Philippines, from China, and there are people from China and from Thailand, from Philippines, from Indonesia, who are looking for male and female, who are looking for to get job in Pakistan. So I'll encourage you people to get e-visa, to get visa service. If you want to get our services, you can get from us as well, but we will charge consultancy. And if you don't want, and if you are smart enough to apply your own visa, you can have, there are 8 steps, and the website link is given in description as well. You can visit and you can check and you can come to Pakistan. There is no war and terror, something like that. People are staying in Pakistan, they're happy, they're peaceful. Even I'll compare Pakistan with UAE. See, people or the media is portraying our image that we are terrorist, there is unrest, there is no security of life in Pakistan.
and you should not go to Pakistan. I'll encourage you to come to Pakistan because Gwadar project is going to be a big boom in this area. I mean this Gulf and this Pakistan, China and India as well. So there are many business opportunities which you can get if you will be coming. I mean before it gets so hustle and bustle area in this Pakistan Gwadar project as well. And one more thing, there are many people who are getting killed or getting threats in UAE, in drugs industry and prostitution industry, but that is under cover. I mean you cannot bring this thing on media, but if you stay, if you have links in UAE, they'll tell you that there is underground things which are happening. I mean after 2 or 3 or 4 days there might be someone who is losing his or her life just because of they are from drugs or prostitution industry. So I'm not saying that UAE is insecure or don't go. I'm saying that if this thing is happening, this thing might happen in Sri Lanka, in Bangladesh, in Philippines, in Indonesia. This is happening in New York, in UK as well. I have one of my friend, he's from Liverpool. He's a gangster. He's saying that most of the people in Liverpool, in UK, they are uneducated. They speak well English because it's their mother tongue. So what I'm saying, Pakistan is a safe place. Pakistan is a future good destiny for traveling, for education, for business. So if you have someone, and especially those people who are staying in UAE, हर वो बंदा जो यूएई में रह रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड या जिसका बॉयफ्रेंड या जिसका जो भी किसी और कंट्री से है, इंडोनेशिया से, फिलीपीन, अगर वो आना चाहते हैं उसको इनकरेज करें, उसको लेके आएँ. आप लोगों का इमेज इंटरनेशनली जाएगा, वो पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे अपने कंट्री में, तो आप लोगों की कंट्री में और ज़्यादा चांसेस आएंगे. आपको नेक्स्ट टाइम अपने कंट्री से बाहर नहीं भागना पड़ेगा रोज़गार के चांसेस के लिए. और आप लोगों को वेलकम करें. यूएई यही कर रहा है, आप लोगों को बुला के, सब लोगों को बुला के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. आप खुद भी कमा रहे हो तो और उनको भी कमा के दे रहे हो, तो आप वेलकम करें. मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो यूएई में रह रहे हैं, किसी की गर्लफ्रेंड या वाइफ फिलिपिनो, इंडोनेशियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी है, म्यांमार से है, तो आप उनकी इनकरेज करें, बुलाएं. ठीक है, यहाँ का जितना भी होटल का वो होगा वो मैं अरेंज करके दूंगा अगर आपसे नहीं हो पा रहा. ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. होटल पिक एंड ड्रॉप, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप. ठीक है, पूरा प्लान, मतलब कहाँ से जाना है आपको गाड़ी दे दी जाएगा. ऑफकोर्स उसका आपने पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, बट पूरा पैकेज जो है वो मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ अगर आप मेरे थ्रू आते हैं. वरना आप खुद भी अगर पाकिस्तान से, तो आप खुद भी किसी को बुला सकते हैं और उसको सारा पाकिस्तान घुमा सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज कर सकते हैं. क्योंकि गवादर का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है. इंटरनेशनली काफ़ी सारे, मतलब यूएई स्पेशली बहुत ज़्यादा उंगली कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा तो यूएई का जो पोर्ट है वो ठप हो जाएगा. वो पाकिस्तान के पोर्ट के सामने इतना छोटा सा फिदा सा पोर्ट है. तो खैर आप एजुकेटेड बनो. ठीक है, और ये एक और वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम अनएजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से हम पीछे चले जा रहे हैं. मतलब मेरी पेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनका मैं लिखता रहता हूँ कि किसने मतलब क्या किया हुआ है या क्या एजुकेशन है. ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका हाईलाइट देना चाहूँगा. तो मुझे ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो अंडर मैट्रिक या मैट्रिक के मिलते हैं, और एज किसी की 25 साल है, किसी का 28 साल है. ठीक है, ये है, ये डेटा रहता है मेरे पास. ठीक है, तो मैं इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे कह रहा हूँ कि हम अनएजुकेटेड हैं. और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जॉब करनी है, मतलब रोज़ी रोटी करनी है, तो उसके लिए पढ़ना है. अगर रोज़ी रोटी है, दुकानदारी है, बाबा का बेगा किसी का ज़मींदारी या कोई काम चला तो ओके मत पढ़ो. नहीं यार, यू हैव टू स्टडी फॉर योर सेल्फ टू सर्व योर कंट्री. मतलब आप बैठ के फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर लोगे. ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपके शोल्डर्स पे पाकिस्तान की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आप और मैं ही पाकिस्तान है. ठीक है, मैं इस पे वीडियोस और बनाता रहूँगा. पाकिस्तान की काफ़ी सारी चीज़ों का मैं एक्सप्लोर करूँगा, जगहों को, और मैं इस पे फर्दर दिखाऊंगा आप लोगों को जो वेबसाइट है ये वाली. ठीक है, कि इसके थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. बहुत इजी प्रोसेस है. ठीक है, मैं पाकिस्तानी लोगों को इनकरेज करूँगा कि वो अपने पोर्टल्स इस पे अपना पोर्टल बना सकते हैं. आप किसी को एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हो, इन्विटेशन लेटर दे सकते हो. उसके चार्जेस ऑफकोर्स आपको इस तरह का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए. यहाँ की रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स के, टैक्स रिटर्न्स का, यहाँ पे आप ओके हो, और यहाँ पे SECP के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए.
तो आप लोगों को ई वीज़ा भी दे सकते हो और ऑन अराइवल वीज़ा की भी फैसिलिटी दे सकते हो एज अ कंपनी, ठीक है। तो टैक्स पे करें, गवर्नमेंट को पे करें, ठीक है, गवर्नमेंट उसको खाती है, जो भी करती है, आप अपने लेवल पे अपने आप को ठीक करें, बाद में कंट्री की तरफ सोचें। एनीवे, तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं और होप करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कम से कम पाकिस्तान के लिए ये वीडियो किसी के साथ शेयर करेंगे। मुझे इसलिए नहीं ये शेयर कराना कि मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, मेरा चल रहा है जो भी है, लेकिन आप अच्छा ये शेयर नहीं करते। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है गिवन, नंबर कह रहा हूँ, वेबसाइट का लिंक गिवन है, वो ज़रूर शेयर करें और किसी को विजिट कराएं, उस वेबसाइट पर लेके आएँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की नज़र में ये चीज़ आए, कह रहा है काफ़ी सारे विजिटर्स आ रहे हैं इस वेबसाइट पर, क्योंकि जिसने वेबसाइट डेवलप की होती है उसके पास डेटा आ रहा होता है कि कितने लोग आए हैं, कितनों ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो अभी तो उन्होंने चैट का ऑप्शन नहीं ओपन किया हुआ, जब ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी तो चैट का ऑप्शन भी ये स्टार्ट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट किसी एक और वीडियो में बताऊंगा कि अल्बेनियन लोगों को, मेरे पास एक अल्बेनियन फीमेल वो भी है, रिक्रूटर भी है। अल्बेनिया की जो करेंसी है, मतलब पाकिस्तान का जो 2 रुपया है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, वीडियो वाइंड अप करते, मुझे पता है लंबी हो रही है। अल्बेनिया टू, अच्छा, पाकिस्तान का 1.5 रुपया अल्बेनिया की लोकल एक मतलब करेंसी के इक्वल है। तो अगर आप किसी को पाकिस्तान बुलाते हैं, फीमेल की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की बात करूँ, यूनिट 10, 100,000, 10,000, अगर आप उसको 50,000 पाकिस्तान रुपीज़ देते हो तो उसका लोकल करेंसी का 33,000 लोकल करेंसी बनती है। और ये यूरोप का कंट्री और ये गोरे लोग हैं। तो उसको अगर आप बुलाते हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपका हॉस्पिटल है, मेडिकल सेंटर है, उसमें आप उसको फ्रंट डेस्क पे बिठाओ। अगर आपका स्कूल है, ठीक है, तो उसको स्कूल में रखो। आपका अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपके पास बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बड़े लोग आएंगे। आपकी इवन शॉप है, सेल्स की दुकान है, पकौड़ों की दुकान है, किसी भी चीज़ की है, कोई काम छोटा नहीं है। आप उसको छोटा या बड़ा बनाते हो, ये याद रखो, ठीक है। तो आप अगर उसको बुलाते हो, आपको पता है, देखो हमें लगता है पाकिस्तानी ठरकी, पूरी दुनिया ठरकी, गोरे जितना ठरकी है ना, इतना कोई और नहीं होगा भाई, ठीक है। तो मतलब ये लड़की आपने रखी होगी, अच्छी स्किन, अच्छी, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा, अच्छी सी सफ़ेद त्वचा होगी, त्वचा तो आपके पास बिजनेस ज़्यादा आएगा, क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। अब इसका हरगिज़ आपने मतलब नहीं लेना कि ये प्रोस्टिट्यूशन है, आप किसी को सेक्स नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। सॉरी मेरे वर्ड्स को और मेरे इशारों को गलत मत समझना, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, आपसे, आपकी इमेज से बढ़ के है वो चीज़, मतलब आपकी नेशनैलिटी का। मैं जानता हूँ ब्रिटिश लोगों को, मैं जानता हूँ जर्मन लोगों को, मैं जानता हूँ फ्रेंच लोगों को, जो इतना छोटा माइंड रखते हैं जब उनकी नेशनैलिटी की बात आती है। हम कहते हैं हम लिबरल हैं, किस चीज़ के लिबरल हैं भाई? अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम बनाया है, उस पर प्राउड होना चाहिए। मुस्लिम को अच्छे, आपकी प्रैक्टिस उसको एक अच्छे शेप में प्रैक्टिस करो, ये नहीं इम्पोज करो, दाढ़ी रख लो, मूंछ हटा लो, ठीक है, और टखनों से शलवार ऊपर, और आपका अमल कुछ होना नहीं चाहिए। घर की औरतें और घर के बंदे आपसे तंग हो, ये कोई इस्लाम नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसकी टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा। और दूसरा, आप पाकिस्तानी हो, आपका पासपोर्ट है, उस पर प्राउड होना चाहिए। आप अपने आप को नहीं करोगे, जब आप किसी और की जोली में बैठोगे, आपको पता होना चाहिए कि किसी और की जोली में बैठने की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है, या किसी के जूते चाटने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जो पैरों में बैठता है ना, उसको लोग थूटा मारते हैं, और जो खुद की रिस्पेक्ट करता है उसके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो एनीवे, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात हमारे इमेज से और हमारे बोलचाल से बहुत ऊपर है। उसको एक्सप्लेन इस तरीके से किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्या मकसद है। एनीवे, तो अगर आप उसको बुलाते हैं, उसको 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ देते हो, मतलब ये एक अच्छे यूनिट की बात करो और एक अच्छे प्रोजेक्ट की बात करो, तो उसका 33,000 लोकल करेंसी की सैलरी बनती है, जो कि उसके लिए बड़ी है, ठीक है। और आपका बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा। तो आप बड़ा सोचो, ठीक है, और बड़ा प्लान करो और बड़ा एग्जीक्यूट करो और दुनिया को एक्सप्लोर करो। और मैं दूसरा चैनल है फसी खान का, ठीक है, उस पर इससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ कि और कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, सो दैट आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिले। नो डाउट वो मेरी वीडियोस नहीं होती, वो किसी और चैनल पे होती है, लेकिन उस पर मेरी रिसर्च हुई होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको हर टाइप का वो कंटेंट मिले, जिससे आपको इंकरेजमेंट मिले, कह रहा आप पाकिस्तानी हो तो आपकी वैल्यू है, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को अल्लाह ताला ने गट्स दिए हुए हैं, उस गट्स को आइडेंटिफाई करके अर्निंग करो, बजाय इसके किसी के पैर धोते रहो। या मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा काम मत करो, कोई भी काम करो, अपना काम करो जिससे आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो, ठीक है। यूई ने ब्लॉग किया है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। मुझ जैसे कुछ और लोगों को थोड़ी सी और उंगल दे दिए, ठीक है, कि मैं थोड़ी सी और बात करूँ, खुल के बात करूँ। और मैं फ्यूचर में भी इस चीज़ को बताता रहूँगा कि यूई कितना डार्क, कितना गंदा फेस है, ठीक है, जो कि मार्केट में, मतलब एक प्रोस्टिट्यूट रात को क्या कर रही होती है आप सब लोगों को पता है। सुबह में या जब वो मार्केट में जा रही थी तो वो शरीर दुपट्टा शुपट्टा लेके मार्केट में घूम रही होती है। सेम यूई की ये एग्जाम्पल है। एनीवे,
वीडियो माइंड अप करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना और पसंद आए तो शेयर करना, इनकरेज ज़रूर करना लोगों को इस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हुए। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।